So, I welcome you all once again to this class of basic genetics, which will be shared by three teachers, Dr. Richa Arya, myself and Professor J.K. Roy. I have written the details of my phone number, email and address, everything. In case you have any questions, any confusion, you are always free to contact me and I will be very happy to answer your questions. इसलिए बिल्कुल कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फ़ोन करें नहीं करें, बिल्कुल आप बेहिचक फ़ोन करिए, मैं आपकी हर बातों का जवाब देना मुझे अच्छा लगेगा. सो वीक 2 में हम लोगों ने मेंडेलियन एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन के बारे में पढ़ा था, मेंडेलियन जेनेटिक्स की कौन कौन से वो फिनोमेना हैं जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो तो करते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड 3:1 और 9:3:3:1 रेशो जो आता है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो नहीं दिखता है. तो लेकिन इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले उसमें रखी गई हैं, उस ब्रॉड अम्ब्रेला के अंडर. सो today we will again talk about one more topic which comes under extension of Mendelian genetics, and that is quantitative inheritance. ये 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इन्फेक्टिव इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. Okay, what do you understand by quantitative inheritance? Quantitative inheritance को अगर हम डिफाइन करते हैं और अगर हम कंपेयर करते हैं विथ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव आर दोज ट्रेट्स विच मेंडल वाज स्टडिंग, लाइक फॉर एग्जांपल राउंड सीड वर्सेस रिंकल्ड सीड. ये क्वालिटेटिव चेंज है, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव. मतलब यू कैनॉट मेजर द राउंडनेस और यू कैनॉट मेजर द रिंकल्डनेस. Okay, like for example tall and dwarf, for example yellow and green. तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं. उसके ऑपोजिट में होता है क्वांटिटेटिव जो मेजरेबल ट्रेट्स होते हैं. सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स हम मैंने लिखा हुआ है. सो इन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स यू हैव in a qualitative trait, as it's written over here, it is non-measurable. मतलब you cannot measure anything, but you can just say, you can see it and you can visualize and you can say, in contrast to the measurable trait of quantitative inheritance where you can measure. So qualitative quantitative में पहला difference ये है measurable non-measurable. So this is the first difference. Then in qualitative traits, the trait or the phenotype is controlled by a pair of alleles. Like for example you had tall and small t. तो small t जब आएगा तो वो dwarf हो जाएगा. capital T या capital T और small t आएगा तो ये tall हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा dwarf. So this is controlled by a pair of alleles, whereas in quantitative inheritance the trait is controlled by many genes, or we can say non-allelic genes. That means many genes having different alleles, but they are all non-allelic. Okay, many genes, different genes का मतलब ही है non-allelic. So you should understand difference between qualitative and quantitative. Then important thing is discontinuous phenotype and continuous phenotype. What do you understand by this? When we say discontinuous phenotype, मतलब कि you have either tall plant or you have a short plant. There is no continuity. Okay. However, quantitative में जैसे कि height of an individual, anything that can be measured. Okay. So height of people, अगर आप एक population देखेंगे या आप अपने घर में ही अगर देखेंगे और अगर आप सबका height measure करेंगे तो आप देखेंगे एक trend है, एक continuous trend, आप एक graph बना सकते हैं. So that is called as continuous trait. So there are many examples of continuous traits. For example, how much liter the cow produces milk. Okay, so you can make a graph out of it. It can be 2 liters, it can be 2.5, it can be 3.3 and so on. So therefore you see a continuous variation, whereas in qualitative inheritance the ones that Mendel was talking about was discontinuous. Then the extent of phenotype is not dependent upon the number of dominant alleles. Okay, so in what does it mean? In quantitative inheritance, if you have, like example over here I have shown capital T and capital T small t, both of these genotypes will give rise to tall plant.
इट विल नॉट डिपेंड कि 2 डोमिनेंट अलील है कि 1 डोमिनेंट अलील है। अगर 1 डोमिनेंट अलील होने से ही ये जो प्लांट है वो टॉल हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह से और उसके ऑपोजिट जो क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कितने अलील्स हैं जो ऐड कर रहे हैं फिनोटाइप को, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। बट जस्ट यू रिमेंबर दैट इन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस the number of dominant alleles does not matter, whereas in quantitative inheritance it matters. And then in qualitative inheritance the environment does not play a role. It is very important to note that environment has no role to play. If you have a round seed and if you have a wrinkled seed, so they will remain round and wrinkled if the genotype is determining that phenotype, but the environment will not play any role. However, in quantitative inheritance environment plays a very important role. For example, अगर एक कोई प्लांट है जिसका हाइट होना है 4 मीटर्स, ठीक है, बट अगर उस प्लांट को आप पानी, खाद, सनलाइट नहीं देंगे तो उसका उतना हाइट नहीं बढ़ेगा, विच मीन्स दैट एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यही सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक पिक्टोरियल वे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, discontinuous versus continuous trait. Here I have drawn, you can see a tall plant crossed with a short plant. In F1 you see all tall plant, and if you cross this tall plant with interbreed with another tall plant, in F2 we see a 3 tall and 1. So you get a 3:1 ratio which resembles a discontinuous phenotype, or what Mendel had shown that in when there is one gene that we are talking about, we see a discontinuous phenotype. On the other hand, if there is a continuous variation, if this tallness depends upon the it is a quantitative trait. So here you have crossed a tall plant and a dwarf plant, and in the F1 you see intermediate. Okay. In the F2 if you cross, you see a range of height. You see that this F2 generation, when you cross two F1 plant, you will not see a 3:1 ratio, but you will see some tall, some short, some tall, some very tall, this kind of a phenotype. And when you draw a graph, you can see this situation. So this is what is the difference between continuous trait and a discontinuous trait that I was talking to you about. यहाँ पर मैंने एक और मैंने जो बताया था कि डोमिनेंस का इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डोमिनेंस इफेक्ट का। तो ये यू कैन सी द जीनोटाइप स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज कैपिटल ए, एंड द फिनोटाइप इफ यू लुक एट द स्टार्स, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है, ये वाला जो फिनोटाइप है वो सेम है। इट डज नॉट मैटर वेदर देर इज वन अलील और देर आर 2 अलील्स। हाउएवर इस साइड में जो है वो एडिटिव इफेक्ट हम लोग दिखा रहे हैं। आई टॉक अबाउट व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट। दैट मीन्स दैट द नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स आर एडिंग टू द इफेक्ट। एज आई वाज टेलिंग यू, जो पहला वाला इसके पहले वाले जो स्लाइड से दो, कि डोमिनेंट अलील्स का डिसकंटिन्यूअस ट्रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंटिन्यूअस ट्रेट में फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर यू कैन सी दिस इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन वेयर यू हैव वन डोमिनेंट अलील, and you can see the phenotype is till here, whereas when you have 2 dominant alleles, you see the phenotype has changed. So this is very important to understand in quantitative inheritance. Now the continuous trait, it depends upon the number of genes and alleles. Okay, what it means is कि जब दो एक ही पेयर ऑफ अलील है, मतलब एक जीन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके पहले जो हमने एग्जाम आपको दिखाया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये 1, 2, 3 फिनोटाइप हमको मिल रहे हैं, ये और ये फिनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि ये फिनोटाइप मिल रहा है, एंड इफ दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ टेल ऑफ अ माउस, ये एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ टेल ऑफ अ माउस। तो अगर होमोजाइगस रिसेसिव है ये हाइट होता है, हेट्रोजाइगस है तो ये है, और होमोजाइगोट है तो यहाँ पर आ जाता है। तो जितना, तो यहाँ पर 2 अलील जो है वो दोनों डोमिनेंट है, इसलिए जो टेल लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 अलील का एग्जाम्पल, 2 पेयर ऑफ अलील्स, मतलब 2 जीन्स। हियर आई हैव यूज्ड 2
2 genes. Now this 2 genes, as you can see, just एक पेयर अलील बढ़ने से आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तरह के फिनोटाइप हमको मिल रहे हैं. और अगर आप ये प्यूनेट स्क्वायर अगर बनाते हैं A का, तो आपको 16 बॉक्सेस दिखेंगे. उसमें आप देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस में कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है, जैसे A, B, इसमें कोई डोमिनेंट अलील नहीं है. कहीं पर जस्ट 1 होगा 1, कहीं पर 2, कहीं 3, कहीं 4 मैक्सिमम है, यहाँ पर 4 है. इफ दिस इज इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ टेल, व्हाट यू कैन सी इज जहाँ पर 4 डोमिनेंट अलील्स हैं, सबसे ज़्यादा उसका लेंथ बढ़ा है. सो दिस इज व्हाट इज एडिटिव, मतलब हर अलील जो है वो फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट कर रहा है. So this is very important in quantitative inheritance, that the alleles are adding to the phenotype. Now there are 3 types of continuous traits, or let's say we can divide the continuous trait into 3 different categories. First is a continuous trait, it can take any value. जो example अभी तक हम लोग देख रहे थे, height of human population, the number of liters of milk a cow produces, the amount of fat in goat, okay, and eye color, hair length, everything, skin color, ये सारे जो traits हैं ये continuous traits हैं, क्योंकि इसमें कोई भी value हो सकता है. इंटीजर मतलब डेसिमल में भी हो सकता है, 1.1, 10.2, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हमको ये हमेशा एक तो कंटिन्यूस नॉर्मल ग्राफ दिखता है इस तरह से. ठीक है. सो दिस इज द कंटिन्यूस ट्रेट, दैट वन कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. Second is meristic traits. What do you understand by meristic traits? Meristic traits are those traits where we do not get an answer in decimal. For example, the number of eggs a hen produces. Hen will not produce 1.5 egg or 3.2 egg. Hen will always produce 1, 2, 3, 4, 5. तो ऐसे देख के लगता है तो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 है. लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो नंबर ऑफ एग्स, कितने एग्स एक हेन ले करती है, वो एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है जो बहुत सारे फैक्टर्स और जीन्स और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. उसी तरह से ये लिटर जो है, लिटर साइज अगर आप देखेंगे, चाहे ये पिग का हो, चाहे माउस, रैबिट, डॉग्स, एनी, यू विल फाइंड दैट दे ले 1, 2, 3, 4, 5. 2.5 बच्चे तो होते नहीं हैं. सो इसलिए ये सारे जो है ये इंटीजर्स होते हैं. इसमें यहाँ लिखा हुआ है. So this is integers and that's countable, you can count, but these traits are also quantitative and they are called as meristic traits. Okay. Then the third category is threshold traits. What this threshold trait means is that for example, I'll just take example, for example diabetes, or let's say cancer or heart disease or blood pressure. ये सारी बीमारी जो है, we know that ये इसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं, एंड इफ अ फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, देयर आर चांसेस कि बच्चे में भी वो कुछ जीन्स आएंगे डायबिटीज़ के. ठीक है. तो जब वो जीन्स आते हैं तो वो एक तरह से वो बच्चा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिस्पोज्ड. प्री डिस्पोज्ड का मतलब है द चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड सम जीन्स विच कैन कॉज डायबिटीज़. ओके. बट if the lifestyle of that person is such, जैसे obesity है, no exercise, food खाना cannot be controlled, कितना भी खा लेते हैं, तो उससे डायबिटीज़ का लेवल जो हाई हो जाता है. तो थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अगर एक पॉइंट तक अगर आपके जो सारे फैक्टर्स हैं इस पॉइंट से नीचे रहते हैं. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है हिंदी में दहलीज जिसको बोलते हैं. तो अगर फैक्टर्स जो है वो दहलीज के अंदर हैं तो वो पर्सन नॉर्मल है, क्योंकि दो उसमें जीन्स हैं, वो पर्सन नॉर्मल है. लेकिन जहाँ वो दहलीज के ऊपर चला जाता है, मतलब कि जहाँ वो जो अगर जेनेटिक फैक्टर तो है ही, प्लस साथ में अगर एनवायरनमेंट भी ऐड हो जाता है तो इट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड. सो व्हेन इट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड, देन दिस इज द इंक्रीज्ड रिस्क. यू सी ओवर हियर, रिस्क बढ़ जाता है और इंडिविजुअल कैन हैव दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस. सो दीज traits are called as threshold traits. Again, why they quantitative? Because threshold answer is yes or no. A person, whether a person has diabetes, it can be yes or it can be no. दो ही आंसर है, but still they are quantitative, right?
So, you can just say that what is quantitative inheritance? So, it is a collection of non-allelic genes that contribute quantitatively to the phenotype to produce a range of variation. So, non-allelic genes contribute quantitatively to the phenotype. Okay? I will see. Okay. So, this example I have also taught earlier when we talking about polygenes. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है कर्नल कलर ऑफ वीट का. तो इसमें 3 genes are involved, A, B, C. You can see that when all the dominant alleles are present, the color of wheat is dark red, and when all recessive alleles are present, the color of wheat is almost white, albino. जब हम क्रॉस करते हैं F1 में, बिकॉज हाफ कॉम्प्लीमेंट मेल पेरेंट से आता है, हाफ फीमेल पेरेंट से आता है, इसलिए यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस सिचुएशन है जहाँ पर 3 डोमिनेंट अलील्स है, इसलिए इसका जो कलर है इन दोनों के बीच का हो जाता है. अब हम इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो अब जब हम ये प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, व्हाट यू कैन सी इज दिस रीजन ओवर हियर एंड दिस रीजन ओवर हियर, दे आर वंस ऑफ द पेरेंट्स, दे आर पेरेंटल्स. द रेस्ट द कलर विल डिपेंड अपॉन the number of alleles that are added. ठीक है? So you can see over here 63 are red and there is 1 white. Red मतलब different shades of red. You know that in this Punnett square there are 64 boxes, but the 64 genotypes, and so of this 64 genotypes, 63 show different variations of red and this shows just no color. So, what I want to say over here is that we see an additive effect. मतलब कि हर अलील जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक फिनोटाइप में. ठीक है? So, when you draw a graph, what you can see, if you draw a graph of various colors that are produced, what you can see a normal graph. Here starting from, and this is let us say the intensity of color, what you can see is that starting from very light or almost no color, you see very dark color, and if you draw, it is a normal graph like this, and ये वाला जो mid line है, this is the mean where the phenotype is intermediate between the two and the number of these plants are maximum. We will see how later on. Now, one question that is posed over here is, how does this differ from multiple alleles? Okay, you know that we studied ABO blood group, उसमें हमने देखा कि 3 alleles होते हैं. White ड्रोसोफिला का जो white eye color है, white gene, उसके बहुत सारे alleles है. ये कैसे differ करता है? क्योंकि यहाँ पर भी quantitative में भी हम बहुत सारे alleles की बात करते हैं और यहाँ पर multiple alleles में भी 2, 3, 4, 5 alleles हैं. तो differ इसमें ये है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही अलील होते हैं. जैसे अगर ब्लड ग्रुप का देखते हैं तो या तो IB होगा, IA होगा, है ना. ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि IA भी है, लेट्स से IA भी है, IB भी है और IA भी है. Why this is wrong? Because we are all diploid and we just have 2 alleles. So, but in quantitative inheritance there are non-allelic. So, one chromosome में you can have one allele, pair of alleles इसमें, other chromosome में you can have other pair of allele, third में you can have other pair of allele. So, this is combination of different alleles. Here you just have 2 alleles even though a gene has multiple alleles. So, this is how it differs from multiple allelism. Now, statistics plays a very important role in quantitative inheritance. बिकॉज ये जो नॉर्मल कर्व होता है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है मीन. सो मीन वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरियंस. व्हाट इज वेरियंस? वेरियंस इज अ स्प्रेड ऑफ डेटा. मतलब कि मिड पॉइंट से कितनी दूर तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वेरियंस. व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि 2 पॉपुलेशन है, अगर आपने 2 एक्सपेरिमेंट किया, वो दोनों एक्सपेरिमेंट का मीन एक हो सकता है. ठीक है? लेकिन जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बनाती हूँ तो ये मिड पॉइंट है ना, लेट्स से ये 10 है, तो मिड पॉइंट अगर 10 है और दूसरा पॉपुलेशन जो है
उसका भी मिड पॉइंट 10 है, ठीक है, लेकिन दोनों का मीन तो एक है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्प्रेड ऑफ आपका फिनोटाइपिक वेरिएशन है वो ज़्यादा है। सो देयरफॉर वेरिएंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड वेरिएंस को हम लोग कभी कभी स्टैंडर्ड डिविएशन के रूप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि कितना हम लोग का मीन से स्प्रेड है किसी भी फिनोटाइप का। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें पॉलीजीन्स में, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ, अगर हमको पता है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी फिनोटाइप्स, ओके, हाउ मेनी फिनोटाइप्स यू एक्सपेक्ट, हाउ मेनी फिनोटाइप्स you expect when there are 4 genes। तो ये आपको फिर बहुत बड़ा प्यूनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, 4 जीन्स के इतने कॉम्बिनेशन करने के लिए। लेकिन इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक वो है फॉर्मूला, उसको बोलते हैं 2n + 1 = द नंबर ऑफ फिनोटाइप। मतलब n का मतलब है नंबर ऑफ जीन्स। तो अगर 4 जीन्स है 2 × 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो अगर 4 जीन्स है तो हम लोग को 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स मिलेंगे। तो उसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमको एक बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ मिल रहा है तो उसमें कितने सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, प्रपोर्शन 1/4 raised to power n = number of genes। What does this mean? That if there is one gene, okay, or if there are 2 genes, you put 2 value over here. So 1/4 raised to power 2 = 1/16. So the proportion of the least number of individual in that particular Punnett square will be 1/16. Or if there are 3 genes, you have 1/4 raised to power 3 which is equal to 1/64। हम लोगों ने देखा था इसके पहले जो वीट कर्नल में कि आपको 3 अलग अलग 64 बॉक्सेस मिल रहे थे। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देर आर सम क्वेश्चंस जो आई हैव जस्ट नोटेड डाउन ओवर हियर कि इन केस यू वांट टू रिवाइज क्या हुआ है, व्हाट आर थ्रेशोल्ड ट्रेट, एंड हार्ट डिजीज इज अ थ्रेशोल्ड ट्रेट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू टू टेल व्हाट contributes to the disease और क्या factors हो सकते हैं। For example, again, not exercising, eating lot of oily food, cholesterol बढ़ा देना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे हार्ट डिजीज़ में। उसके बाद ये वाला एक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि there are 2 genes which decide the kernel weight A and B, they show independent assortment, each dominant allele, अब यहाँ पर देखो we are calculating, each dominant allele contributes 5 milligram, ये important point है। बेसल वेट इज 10 मिलीग्राम, मतलब अगर कोई भी एलील्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो जो गेहूं का जो ये सीड है इसका वेट जो है वो 10 मिलीग्राम होता है। अब हमको ये बताना है कि अगर हमने क्रॉस किया AABB क्रॉस्ड विथ AABB तो उसका क्या वेट होगा और क्या जीनोटाइप होगा और क्या F1, F2 और P का। तो जैसे कि अगर है A डोमिनेंट अलील है, B B, ठीक है। नाउ बेसल इज 5, व्हाट इज इट 10, सॉरी, बेसल अलील इज 10, ईच डोमिनेंट अलील इज एडिंग 5। सो यहाँ पर 1 2 3 4 देयर आर 4 डोमिनेंट अलील्स, मतलब 4 × 5 इज 20, 20 + 10 इज 30। सो इसका जो वेट होगा वो 30 मिलीग्राम होगा। और जहाँ पर AABB है तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है इसलिए इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मिलीग्राम। और अगर हम एक इसको क्रॉस करते हैं जो दोनों होमोजाइगोट्स हैं तो यू विल हैव जो F1 होगा उसका जीनोटाइप विल बी AABB। सो 10 इज द बेसल हाइट, 2 डोमिनेंट अलील्स एडिंग 10, so this is 20 milligram. So this is how you solve the questions of quantitative inheritance. I have another question for you, and I don't know how much time, but you can just see this is again the same kind of numerical where you have been given 2 populations, different populations, and you have been given the
numbers that's 9 inch and 33 inch. ग्राउंड से कितना ऊपर जा रहा है F1 का दिया है, और आपको ये दिया हुआ है कि जो F2 पॉपुलेशन है वो 1/256, जो F2 में जो सबसे छोटा पॉपुलेशन जो होता है, जो एकदम कॉर्नर वाला होता है, वो 1/256 है. नाउ यू कैन कैलकुलेट कितने जीन्स इसमें इन्वॉल्व है बाय द यूजिंग द फॉर्मूला 1/4 n is equal to 1/256, and you can find out how many genes are involved. When you find out how many genes are involved, then you can put those numbers, write any label A, B, C, D, E, F, G, and then write the genotype and phenotype. So once you understand this, it is not very difficult. Thank you.